Good afternoon, everyone. Now, we have to start with the first chapter of the 12th accounts. First chapter, okay? That is, right, partnership related, like introduction to partnership. So, let me check your mm, module. Yeah, textbook, basically. Okay. Hmm. Okay. Okay, Yash, is there any question? Yash has raised his hand. Okay, I'm not clear. Okay, I think I'm audible right now. Okay, I'm audible. Please check when I'm audible or no. Good. We have to start with the introduction of the partnership and the partnership final accounts. Okay? Thank you. So let's start. Introduction to partnership and partnership final accounts. Introduction to partnership. Basically, in earlier curriculum, this chapter was divided into two chapters. One was introduction to partnership. This was chapter 1, and partnership final accounts was a chapter 2. Now they have merged it, right, with some additional adjustments. Introduction to partnership. So I will take the first part. I will start with the first part, introduction to partnership. We will understand what do you mean by partnership, right? What are the types of right partners? Then what are the types of capitals, etc., etc. All those things. That is introduction to partnership. One good thing about the new syllabus is they have included some of two more adjustments. They have introduced two more adjustments. Still, this chapter is substantially wrong. मैं आपको पहले ही बोलता हूं, many adjustments के effects still they are wrong. I expected that the new curriculum will introduce to the correct treatment, but still, right, जो पहले गलतियां होती थी वही गलतियां अब हम दोबारा और 10 साल करेंगे, बिकॉज जनरली 10 इयर्स के बाद सिलेबस चेंज होता है, इसे बोलते हैं. सो जहां जहां पे गलत ट्रीटमेंट करने वाले, आई विल टेल यू कि एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या होती है और गलत ट्रीटमेंट क्या होती है, एंड हम वो गलत ट्रीटमेंट करते रहेंगे. ठीक है. सो बिकॉज इन सीए फाउंडेशन व्हेन आई विल बी टीचिंग यू पार्टनरशिप अकाउंट्स, राइट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि हमने 12th में गलत किया था. आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट, आर स्टेट बोर्ड, राइट. बाकी बोर्ड्स पे जाओ, आईएससी देखो, सीबीएसई देखो, दे आर गिविंग करेक्ट ट्रीटमेंट, नो डाउट एट ऑल. सो एटलीस्ट जब नया सिलेबस इतना लाया है तो और 2-3 चेंजेस करते तो, राइट, हम करेक्ट सीखते. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट. What do you mean by partnership? Basically, partnership is actually the business organization where two or more persons come together. They carry on a business with the intention of earning profits and they share the profits. Sole 11th में जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप सीखा था, राइट, उसमें हमने सीखा था कि देयर इज ओनली वन ओनर. ही इज ओनर, मैनेजर एंड कंट्रोलर. OMC, ओनर, मैनेजर एंड कंट्रोल ऑफ द होल बिजनेस. वो कैपिटल लाएगा, वही रिस्क शेयर करेगा, राइट, वही प्रॉफिट शेयर करेगा. बट देयर इज अ लिमिटेशंस, बिकॉज ए सिंगल ओनर कितना कंट्रीब्यूट करेगा इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, कितने रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस अवेलेबल रहेंगे, एवरीथिंग इज लिमिटेड एंड देयरफॉर सोल प्रोप्राइटरशिप ग्रो होती है बट टू ए लिमिटेड एक्सटेंट. इफ यू वांट टू एक्सपांड योर बिजनेस,
right? You need both capital as well as human resources, and for that purpose, right, you will shift to partnership form of business. So partnership form of business में there are more than one owner, they are called as partners. They are called as partners. Second, they introduce capital. So there are more than one person who is contributing the capital, and therefore the capital base of the partnership firm is a bigger, larger than the sole proprietorship, and obviously bigger capital comes with the bigger opportunities, right? Bigger, like large number of owners increases human resources, and obviously there are chances that the success ratio will be more. Even risk also gets shared between the partners. Obviously, if risk is sharing, rewards will also share, right? Profits are also shared between the partners in their agreed ratio. So partnership is always, right, the always नहीं बोल सकता, but it is better than sole proprietorship in many aspects. But still there are chances that partnership may, some partner may not take part, he may neglect his duties, right? ऐसे केसेस में क्या होता है, you will learn that in Indian Partnership Act 1932. So partnership, try to understand, is a business organization where two or more persons comes together, carry on a business, right? They earn the profit, share the profits. The partnership as such in India are governed by Indian Partnership Act. लिख लेना, Act. Which act governs the partnerships? There is no specific act for sole proprietorships. But for partnership, there is a specific act, that is Indian Partnership Act, IPA, Indian Partnership Act. Indian Partnership Act 1932. Indian Partnership Act 1932. Then this act is applicable to whole of India except state of Jammu and Kashmir. Then next, now you will say, sir, Jammu and Kashmir has been, right, disintegrated, but still it is not applicable to Jammu and Kashmir. उस एरिया के लिए वो applicable नहीं है. Then next, as per section 4 of IPA of Indian Partnership Act 1932. This is important. Section 4 is important. It gives the definition of partnership. It says partnership is a relation. Partnership is a relation between persons. It is a relation between the persons, but for what purpose? The relation का कुछ purpose होना चाहिए. To share the profits. That relation is to share the profits. To share the profits. So partnership is a relation. सबसे पहले it is a relation between the persons. Plural form use किया, singular नहीं है. So जब मैं persons बोल रहा हूं तो there has to be minimum 2 persons. समझ में आ रहा है? Single person cannot be called as persons. Plural form है. So minimum 2 persons to share the profit. That relation is to share the profits from. Profit कहां से? From a business. Relation is to share the profits from a business carried by all of them or one of them acting for all.
This is the actual definition given in the section 4 of the IPA 1932. Word and word match होगा definition. So partnership is a relation between the persons to share the profits from a business carried on by all. Everyone will carry the business or any one of them acting for all. Or you may appoint 4 लोग हैं, बोलते ए मिस्टर ए विल लुक आफ्टर द बिजनेस. हम चारों पार्टनर है, all will contribute capital, but A will carry on a business on behalf of everyone. That will do, no problem. So it may be carried by all or any one of them, right? Acting for all. Now, next. So what are the features? अब मैं इस definition को explain करूंगा. Therefore comes features of the partnership. Features of the partnership. First, it is a relation between the persons. So can I say it is association? It is association of 2 or more persons. It is association of 2 or more persons. Association means when 2 or more persons come together. उसको हम association बोलते हैं. So partnership is an association of 2 or more persons. My first question. Minimum number of partners. You have to tell me minimum number of partners. And you have to tell me maximum number of partners. You have to ping me the answer. I want from you minimum number of partners. शायद से मैंने पहले कभी बोला भी होगा. If you remember. Minimum मैंने first lecture में ही बोला होगा शायद से. Minimum number of partners. And maximum number of partners. चलो तब तक पिंग करो आप मुझे. Minimum number of partners and maximum number of partners. Okay. Yes, good. Perfect. Yeah, so you remember what I told you on the first day. Good. सब बराबर दे रहे. Good. I'm happy. आप लोग बराबर बोल रहे हो. Minimum number of partners is 2. Minimum is 2. Try to understand. Partnership Act 1932 does not tell you about number of partners. कहाँ पे भी लिखा नहीं है. The definition itself is the indication. You are saying it is a persons. So it is a plural. मतलब minimum 2 तो बंदे होने चाहिए. एक्ट में कहाँ पे भी लिखा नहीं है कि 2 बंदे होने चाहिए. डेफिनेशन ही बोल रही है कि it has to be 2 persons. You have to interpret the act. एक्ट कोई चीजें इजीली बोलता नहीं है. एक्ट को हमें इंटरप्रेट करना होता है. सो एक्ट बोलता है यार, द सेक्शन 4 सेज इट इज पर्सन्स. सो पर्सन्स मतलब क्या, राइट? पर्सन्स मतलब राइट 2 पर्सन्स होने चाहिए. प्लूरल है. एक्ट लॉ सेज इट इज यूज्ड इन द प्लूरल सेंस, मतलब 2 बंदे होने चाहिए. What is the maximum number of partners? Even Act does not. Indian Partnership Act does not talk about maximum number of partners. Section 464 of Companies Act. Companies Act 2013. Gives the definition of illegal association. Section 464 of the Companies Act gives definition of illegal association. And उसमें उन्होंने maximum number बोला है. आप बोलोगे सर इंटरप्रिटेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है क्या? Persons. I will give an example. आप समझ लेना. एक सिंपल एग्जाम्पल है. It was very landmark case study. I don't remember exact name of the airline. किस एयरलाइन के साथ हुआ था ये? But try to understand. एक एयरपोर्ट अथॉरिटी है. This is airport, इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी. ठीक है. फ्लाइट्स आते हैं, यहाँ पे पार्किंग रहता है ना, उनका पार्किंग रहेगा अंदर. ऑब्वियसली हर
एयरलाइन के कुछ ना कुछ पार्किंग लॉट्स रहेंगे, उसका रेंट डिसाइड किया होगा, पार्किंग का रेंट जो भी रहेगा, एंड इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, बराबर। सपोज एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि स्पाइस जेट, उनका दिल्ली एयरपोर्ट पे एक पार्किंग है, उनके जितने फ्लीट्स में जितने सारे एयरपोर्ट्स लाइक एयरक्राफ्ट रहेंगे या उनके जो जो भी प्लेन्स रहेंगे, उनके लिए एक पार्किंग स्पेस है, एंड दैट एयरपोर्ट अथॉरिटी चार्जेस, राइट, रेंट फ्रॉम दे, मंथली रेंट रहेगा। जैसे हम हमारे अगर हम गाड़ी कोई पीएमसी के एरिया में कहाँ पे पार्क करते तो हमें राइट 10 रुपीज 5 आवर्स के या जो भी रहता है पे करना होता है, उन सिमिलर बेसिस जो उनके प्लेन्स रहेंगे वो ऐसे थोड़ी रोड पे पार्क करेंगे, अंदर पार्क करेंगे ना एयरपोर्ट में, तो उनकी वो जो स्पेस होती है उसके लिए उनको रेंट देना पड़ता है, एंड दिस इज वेरी लॉजिकल, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ द स्पाइस जेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने या इन लाइक मैं इंडिगो लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है समझने के लिए, इंडिगो एंड सपोज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द रेंट पर्पज। इंडिगो पेज रेंट टू देम, it is expense of Indigo, it is income of that airport authority, and if you know there is a TDS, tax deducted at source concept, tax deducted at source, जिसको पेमेंट करना होता है ना, he has to deduct the tax from that payment। एग्जाम्पल, इफ यूर एम्प्लॉई, तो जो आपका एम्प्लॉयर है जब आपको सैलरी देगा, सपोज आपकी सैलरी 1 लाख है ग्रॉस सैलरी, he deducts 10,000 टूवर्ड्स TDS, वो आपको देगा 90,000, वो आपको देगा 90,000, 10,000 गवर्नमेंट को देगा आप पे भी, आप पे, आप उसके लिए तो 1 लाख ही देना है, बट वो 2 लोगों को देता है, 90,000 आपके जेब में डालेगा, 10,000 गवर्नमेंट की जेब में डालेगा। उसके लिए कितना पेमेंट हो गया, 1 लाख का हो गया, एम्प्लॉयर के लिए 1 लाख का पेमेंट हो गया, 90,000 आपके जेब में, 10,000 आपके भी, आप पे गवर्नमेंट के जेब में। तो अगर आप TDS नहीं करते हो, मतलब टैक्स कट करके पेमेंट नहीं करते हो, तो उस पूरे इस पे इंडिगो को टैक्स पे करना पड़ता है। अगर माय एम्प्लॉयर डज नॉट, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, इफ माय एम्प्लॉयर, राइट, इफ माय एम्प्लॉयर डज नॉट डिडक्ट द टैक्स, इट इज ट्रीटेड एज हिज इनकम। इनकम टैक्स में वो उसकी इनकम मानी जाती है, सैलरी किसकी इनकम है, मेरी, बट उसने टैक्स कट नहीं किया ना, तो इट विल बी ट्रीटेड एज हिज इनकम, एंड उस पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। वो तो बोलेगा अरे मैंने पेमेंट किया है सैलरी का, मेरी कैसी इनकम, इनकम टैक्स बोलता है कि तूने टैक्स कट नहीं किया ना, तो नाउ इट विल बी ट्रीटेड एज योर इनकम एंड यू हैव टू पे द टैक्स। देखो उल्टा कारबार, उसका रीजन है यू हैव टू मेक द पेमेंट आफ्टर टैक्स। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि लोगों की, जब अगर मुझे सैलरी मिलेगी, देयर इज वेरी लेस, लाइक ऐसे टैक्स इवेजन बहुत होता है कि मैं टैक्स पे नहीं करूंगा, ये चांसेस होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट बोलती है जो पैसे देने वाले ना उसको ही टैक्स कट करके देना चाहिए। मतलब एग्जाम्पल, मैं रेंट पे कर रहा हूं मेरे लैंडलॉर्ड को, मैं टेनेंट हूं, ध्यान देना, आई एम ए टेनेंट, टेनेंट, ठीक है, मैं बहुत अच्छी कंसेप्ट समझा रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई विल म्यूट एवरीवन, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है, आई एम ए टेनेंट एंड देयर इज द लैंडलॉर्ड, मुझे उसको रेंट पे करना है, बराबर, सो इट इज माई एक्सपेंस, इट इज हिज इनकम। अब क्या होगा, अगर सपोज रेंट इज 1 लाख पर मंथ, गवर्नमेंट बोलती है 10% टैक्स कट करना होता है रेंट पे, सो आई विल डिडक्ट 10%। मैं क्या करूंगा पता है आपको, 1 लाख में से 10,000 डिडक्ट करूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं 1 लाख में से 10,000 डिडक्ट करूंगा, टेनेंट को 90,000 दूंगा और गवर्नमेंट को 10,000 दूंगा।
लैंडलॉर्ड को मैं कितना दूंगा? लैंडलॉर्ड को मैं 90,000 दूंगा और 10,000 किसको दूंगा? गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। एज ए टेनेंट में 1 लाख का ही पेमेंट कर रहा हूं, बट 2 लोगों को कर रहा हूं। लैंडलॉर्ड को मिल रहे 90,000, गवर्नमेंट को जा रहे 10,000। ऐसे क्यों? अगर मैं 1 लाख के 1 लाख लैंडलॉर्ड को देता हूं और लैंडलॉर्ड ने टैक्स नहीं भरा तो? समझ में आ रहा है? हर लैंडलॉर्ड टैक्स भरेगा इसकी गारंटी नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो बंदा पेमेंट करने वाला है, टेनेंट इज गोना पे, सो इनकम यहाँ पे जनरेट होने वाली है, लैंडलॉर्ड की इनकम यहाँ पे जनरेट होने वाली है। तो गवर्नमेंट बोलती है जहां पे इनकम जनरेट होने वाली ना, वहां पे टैक्स किया जाए। आगे जान, आप पेमेंट टैक्स कट करने के बाद ही करो। सो टेनेंट को बोला गया है कि जब भी तू रेंट पे करेगा, यू हैव टू डिडक्ट द टैक्स एंड उसको नेट पेमेंट कर। एक्चुअली लिटरली क्या होना चाहिए, लैंडलॉर्ड शुड गेट 1 लाख इन हिज हैंड, उसमें से 10,000 उसने किसको देना चाहिए? गवर्नमेंट को देना चाहिए। बट गवर्नमेंट लैंडलॉर्ड पे भरोसा नहीं करती, बिकॉज देयर टैक्स इविजन। और वैसे भी टेनेंट को फर्क नहीं पड़ता। टेनेंट को क्या फर्क पड़ता है, उसको 1 लाख देने से मतलब है। गवर्नमेंट ने उसको कंपल्सरी किया कि यू हैव टू डिडक्ट द टैक्स, उसको बोला था टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सोर्स ऑफ इनकम पे ही टैक्स कट किया जाए। और फिर टेनेंट लैंडलॉर्ड को बोलेगा, देख गवर्नमेंट ने हमें बोला है मुझे 10,000 गवर्नमेंट को देने और तुझे 90,000 देने, तेरे बिहाफ पे ही मैं दे रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप बोलोगे टेनेंट ये काम क्यों करेगा? उसका रीजन है, ये टेनेंट का जो 1 लाख एक्सपेंस है, उसने 1 लाख पेड किया, बराबर। इफ ही डज नॉट डिडक्ट द टैक्स, दिस एक्सपेंस विल बी ट्रीटेड एज हिज इनकम एंड टेनेंट को ही उसके जेब में से टैक्स देना पड़ेगा। मतलब टेनेंट अगर 1 लाख देता है लैंडलॉर्ड को, तो उसको 1 लाख देना पड़ेगा और 10,000 गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। उसका आउटफ्लो हो जाएगा 1,10,000। अभी आउटफ्लो कितना हो रहा है? 90 लैंडलॉर्ड को, 10,000 गवर्नमेंट को, टोटल उसका आउटफ्लो 1 लाख है। बट अगर वो ऐसे टैक्स डिडक्ट ना करके देता है, तो गवर्नमेंट बोलती है तूने उसको जो दिया उस पे 10% तो हमें दे दे। तो टू अवॉइड दैट, टेनेंट बोलता है मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं 10% डिडक्ट करके तुझे दूंगा, तुझे 90% दूंगा, गवर्नमेंट को 10% दूंगा। वैसे ही टेनेंट की जगह एम्प्लॉयर रखो, एम्प्लॉयर। Try to understand the concept, and this is a practical concept. You must know, being a commerce student, क्या TDS होता है ये पता होना चाहिए। You are an employer. I think आपके 10th में वगैरह आपने TDS किया होगा, I don't know। था क्या आपके 10th में मैथ्स में वगैरह कहाँ पे? I think मैंने सुना है कि अभी कुछ चेंजेस किए हैं, तो ये सिलेबस में डाला है क्या इसे TDS वगैरह का कंसेप्ट? नो। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओनली कैलकुलेशन, ठीक है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर हैज टू पे सैलरी, एम्प्लॉयर हैज टू पे, यहां पे रेंट इन्वॉल्व था, यहां पे सैलरी इन्वॉल्व है, ठीक है। एम्प्लॉयर विल पे सैलरी टू होम? एम्प्लॉई। तो एक्सपेंस किसका हो गया? एक्सपेंस हो गया, एक सेकंड, एक्सपेंस हो गया एम्प्लॉयर का और इनकम हो गया एम्प्लॉय का। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को सैलरी देता है, उस सैलरी पे एम्प्लॉय ने टैक्स पे करना चाहिए। बट गवर्नमेंट डज नॉट बिलीव इन एम्प्लॉय पेइंग द टैक्स ऑन द सैलरी। एम्प्लॉय मे नॉट डिस्क्लोज द इनकम, जो इंडिया में बहुत बार होता है। तो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर को ही बोला तू उसको देते टाइम, सपोज इसकी सैलरी 2 लाख है, एग्जाम्पल 2 लाख है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, और तुझे 30% टैक्स डिडक्ट करना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो 60,000 डिडक्ट कर, तो इसको वो देगा 2 लाख सैलरी है, बट इसको देगा 1,40,000 और गवर्नमेंट के जेब में डालेगा 60,000, गवर्नमेंट के जेब में डालेगा 60,000। सो इससे क्या हो गया, एम्प्लॉय को मिले आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्स, उसको 2 लाख नहीं मिले, उसको मिले 1,40,000, मतलब अपने आप वो 60,000 टैक्स कट हो गया उसका, और गवर्नमेंट के जेब में 60,000 आ गए। इसका एक और बेनिफिट होता है कि टैक्स इविजन कम होता है। दूसरा, गवर्नमेंट को जल्दी टैक्स मिलता है, क्योंकि एम्प्लॉय ईयर के एंड में टैक्स देगा, बट एम्प्लॉयर उसको जैसे जैसे सैलरी देता है वैसे वैसे गवर्नमेंट को टैक्स देता रहता है, इसलिए गवर्नमेंट को टैक्स भी जल्दी मिलता है। अगर एम्प्लॉय टैक्स देने जाएगा तो ईयर खत्म होगा, उसके बाद वो टैक्स पे करेगा, तो गवर्नमेंट को बहुत लेट पैसा मिलेगा। तो टीडीएस की वजह से गवर्नमेंट गेट मनी अर्ली। सो ये बेनिफिट है, तो टैक्स इवेजन नहीं होता है। और दूसरा,
गवर्नमेंट को जल्दी पैसे मिलते हैं, गवर्नमेंट यूजेस दैट मनी फॉर सो कॉल्ड डेवलपमेंट। ये कंसेप्ट जो है, यही कंसेप्ट लेके, मतलब जिसका एक्सपेंस होता है, he has to deduct the tax and he has to pay net of the tax to the सामने वाले को। सो जिसको एम्प्लॉय के लिए इनकम 1,40,000 नहीं है, इनकम 2 लाख है, बट दैट इज he has received 1,40,000 net of tax after deducting tax। अकाउंटिंग कैसे होती है, क्या होती है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द 12th, सो आई वोंट डिस्कस द अकाउंटिंग, बट एक कंसेप्ट समझाई, एक कंसेप्ट समझाई। आई एम एग्जांपल, I am providing professional services to Ekatvam camp. And suppose my professional fees is example 100 rupees. Government बोलती है इस पर 10% टैक्स कट करना होता है। तो actually try to understand, it is my income and it is expense of Ekatvam camp. So Ekatvam camp will pay me, right? Not 100, but they will deduct 10 rupees, 10% as a tax. They will pay me 90 and they will pay 10 rupees to the government on my behalf. मेरी इनकम 100 है, उसमें से 10 रुपए कट हो गए टैक्स के पर्पस पे, टैक्स के लिए, तो मुझे इन हैंड मिले 90 रुपीज। आई नेवर से माई इनकम इज 90, आई से माई इनकम इज 100 ओनली। और एकतम कैंप के लिए एक्सपेंस भी 100 है, उन्हें 90 मुझे पेड किया और 10 रुपीज मेरे बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे किया। सो जिसका एक्सपेंस होता है, ही हैज टू मेक द पेमेंट। तो जब वो पेमेंट करेगा, ही शुड डिडक्ट द टैक्स, टैक्स गवर्नमेंट को दे दे और नेट अमाउंट सामने वाले को दे दे। ये कंसेप्ट है टीडीएस की। अब मैं यहाँ पे आता हूँ इंडिगो एंड लाइक एयरपोर्ट अथॉरिटी। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम ऑफ द एयरलाइन, मैं इंडिगो लेके चल रहा हूँ। हुआ क्या, जब ये पार्किंग लॉट है, ये जो पार्किंग लॉट है, ये बहुत सारे पार्किंग लॉट्स लिए होंगे इंडिगो ने, उसका जो मंथली, अब यू नो, अब सोचो रेंट भी कितना रहेगा, रेंट भी कितना हायर रहेगा, ठीक है। नाउ इन दोनों क्या करते थे पता है, सपोज एग्जांपल पार्किंग का रेंट इज 100, पार्किंग का रेंट 100 है, ऐसे पकड़ के चलो जो इजी कैलकुलेशन के लिए रहे। इंडिगो हैज टू पे 100 रुपीज एवरी मंथ टू एयरपोर्ट अथॉरिटी फॉर द पार्किंग फीस, पार्किंग रेंट फॉर द पार्किंग। नाउ 100 रुपीज पे टैक्स कट करना है, 100 रुपीज पे टैक्स कट करना है। अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो एंड अगर कोई इसको रेंट बोलता है, इनकम टैक्स में कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स अलग एंड रेंट अलग। रेंट टीडीएस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज 2%, 2% एंड रेंट के लिए 10%। मतलब क्या, इंडिगो वाले बोले ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, क्या बोले, कॉन्ट्रैक्ट है, एंड उन्होंने क्या किया, 100 पे 2% कट किया, 2 रुपीज, एंड गवर्नमेंट एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी को कितना पेड किया, 98। क्या हो रहा है ध्यान देना, 98। इंडिगो वाले बोल रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट है, वी हैव एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद एयरपोर्ट अथॉरिटी, अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्ट्रैक्ट हमें 100 रुपीज पर मंथ पे करने हैं, और कॉन्ट्रैक्ट के लिए टीडीएस का रेट 2% है, और वो बोले 100 माइनस 2%, 2 रुपीज। वो क्या कर रहे हैं, 100 जो पे करने उसमें से 98 रुपीज किसको दे रहे हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी को, और 2 रुपीज किसको दे रहे, गवर्नमेंट को दे रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इन पे असेसमेंट की केस डाल दी, इन पे असेस स्क्रूटनी डाल दी। एयरपोर्ट लाइक इनकम टैक्स कमिश्नर का मानना है आपने गलत रेट पे टैक्स कट किया है, आपके लिए एक्सपेंस है ना, तो आपने टैक्स करेक्ट रेट पे कट करना चाहिए। इनकम टैक्स वालों का मानना था इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ रेंट, एंड आपने 100, इनकम टैक्स वाले क्या बोल रहे हैं, 100 माइनस 10 रुपीज, यू शुड हैव पेड ओनली 90 रुपीज, आपने 90 रुपीज एयरपोर्ट अथॉरिटी को पे करना चाहिए और 10 रुपए हमें पे करना चाहिए। तो यू हैव डिडक्टेड
₹8 लेस टैक्स, आपने 10 रुपए टैक्स कट करना चाहिए, आपने 2 रुपए ही टैक्स कट किया है, तो आपने 8 रुपए जो टैक्स कम कट किया है उसके हिसाब से आपको वो टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा एंड उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। समझा क्या हुआ? इंडिगो वाले बोल रहे 2% से टैक्स कट करना है, और वो ऐसे कितने सालों से 2% से टैक्स कट करते आ रहे हैं। एंड व्हेन आई वाज इन सीए फाइनल, तब की एक केस स्टडी है 2011 की, 11-12 की। कमिश्नर ने नोटिस किया कि ये रेंट है, उसके हिसाब से इंडिगो के हिसाब से क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट पे 2%, एंड इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये रेंट है, एंड रेंट के हिसाब से 10% टैक्स कट करना चाहिए, आपने कम टैक्स कट किया है। तो मैंने बोला अगर आप टैक्स कम करते हो, टैक्स जिसका एक्सपेंस है, ही हैज टू डिडक्ट द टैक्स, अगर वो टैक्स कट नहीं करता है, दैट विल बी ट्रीटेड एज हिज इनकम एंड उसको टैक्स पे करना है। समझा? आप अगर टैक्स कट कर विदाउट डिडक्टिंग टैक्स अगर पेमेंट करते हो, वो पेमेंट आपका इनकम हो जाता है और आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब इनकम टैक्स वालों ने इंडिगो वालों पे नोटिस भेज दी कि नाउ पे ₹8 एग्जाम्पल अलोंग विथ इंटरेस्ट। ये बोल रहे क्यों, ये तो कॉन्ट्रैक्ट है। कमिश्नर बोल रहा है नहीं ये रेंट है। केस आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में गई, एंड सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन आ गया ध्यान देना। दे took the definition of rent under income tax act, एंड डेफिनेशन में वर्ड यूज किया गया है रेंट इज लाइक, उसमें डेफिनेशन में लिखा था रेंट इज अ पेमेंट फॉर द यूज ऑफ द लैंड। क्या लिखा है? यूज ऑफ द लैंड। एंड जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की जिन्होंने डिसीजन दिया, उन्होंने बोला जैसे लाइक प्लेन के पहिए ग्राउंड पे टच हो गए, यू हैव बीन यूजिंग द लैंड एंड उसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो, इट्स नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ रेंट एंड यू शुड हैव डिडक्टेड। यू शुड मतलब वो इंडिगो को बोल रहे हैं इट इज पेमेंट भले ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहेगा, बट दिस इज ए रेंट बिकॉज डेफिनेशन इज यूज ऑफ लैंड है। जैसे अगर ऊपर ही घूमता रहेगा, एयरपोर्ट के ऊपर ही अगर प्लेन घूमता रहेगा तो उसको रेंट नहीं बोलेंगे, बट जैसे वो लैंड को टच किया, इट हैज बिकम रेंट। देखो कितना सिंपल वर्डिंग है, डेफिनेशन का सहारा लिया कि यूज ऑफ लैंड इज विल बी ट्रीटेड एज, एंड उसके लिए जो पेमेंट रहेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज रेंट। एंड आपने सुप्रीम कोर्ट ने बोला किसको? इनकम टैक्स के फेवर में बोला, और किसको बोला ये? राइट, इंडिगो को बोला कि आपने 10% के हिसाब से टैक्स कट करना चाहिए, ना कि 2% के हिसाब से। इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ए रेंट। आपने 8% कम टैक्स कट किया है, तो आपको 8% के हिसाब से पेमेंट करना होगा गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स वालों को, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। खाली ये लैंडमार्क जो केस आ गई, क्या खाली इंडिगो वालों को नोटिस गई? बाद में सब एयरलाइंस वालों को नोटिस गई कि एवरीवन वाज फॉलोइंग द सेम प्रैक्टिस, 2% से टैक्स कट कर रहे थे। कितने से करना चाहिए था? 10%। सो सिंपल वर्ड चेंजेस द इंटरप्रिटेशन, इसलिए लॉ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे लिखा था द रिलेशन बिटवीन द पर्संस। सो कहां पे भी लॉ आप चाहे तो देखो, आई विल शेयर द बेयर एक्ट चाहिए तो यू विल राइट नेवर फाइंड इन लॉ पूरे इनकम टैक्स एक्ट में कि देयर आर मिनिमम 2%, कहां पे भी नहीं लिखा है। जहां पे सेक्शन 4 है उसमें वर्डिंग यूज की गई पर्संस। लॉ ट्राइज टू लाइक इंटरप्रेट यू इन ए प्लूरल सेंस, तो पर्संस कब होंगे? मिनिमम, इसलिए यहां पे मिनिमम 2%। आगे नेक्स्ट मैक्सिमम 50 लाइक अच्छा maximum person, maximum number of partners is given in section 464 of Companies Act 2013. Section 464 talks about illegal association. It talks about illegal association. And according to that, any association which has more than 100 persons, any association which has more than 100 persons has to be company, has to be registered as a company. If not, it is illegal association. Illegal का तो मतलब आपको पता है, राइट? एक लड़का और लड़की रह रहे विदाउट शादी, लाइक ए हस्बैंड वाइफ, इट इज इलीगल एसोसिएशन।
ट्राई टू अंडरस्टैंड. वो जब तक वो मैरिज नहीं होता है आप उसको लीगल नहीं बोलते. ट्राई टू अंडरस्टैंड. बट एक बार शादी हो गई तो वो लीगल हो गया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इफ एनी एसोसिएशन with more than 100 persons has to be a company. वो कंपनी होनी चाहिए. You have to register it as a company. आप उसको पार्टनरशिप या आप उसको सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं हो सकती, आप उसको ट्रस्ट वगैरह नहीं बोल सकते. इट हैज टू बी ए कंपनी. नाउ इसका मतलब अगर 100 से कम है, इफ नंबर ऑफ मेंबर्स इज लेस देन 100, इट कैन बी कंपनी और इट कैन बी पार्टनरशिप फर्म. कोई प्रॉब्लम नहीं. इट कैन बी कंपनी और इट कैन बी पार्टनरशिप फर्म. 100 से ज्यादा है तो खाली क्या होना चाहिए? कंपनी होनी चाहिए, पार्टनरशिप नहीं. हाउएवर 2014 में रूल्स आ गए, कंपनीज एक्ट में एक रूल्स आ गए 2014 में. एंड अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स दे हैव सब्स्टिट्यूटेड 100 वर्ड्स. जो लॉ में 100 वर्ड्स 100 वर्ड यूज किया है ना, दे हैव सब्स्टिट्यूटेड विथ 50. सो टुडे any association having more than 50 persons as owners has to be company, otherwise it will be treated as illegal association. मतलब देखो 50 तक अगर मेंबर्स है, ओनर्स है, तो इट कैन बी पार्टनरशिप, इट कैन बी कंपनी, दोनों पॉसिबल है. बट 50 से ज्यादा है तो इट हैज टू बी ओनली एंड ओनली व्हाट? कंपनी. एंड देयरफॉर टुडे number of members number of members in a partnership is 50 and not 10 and 20. 10 used to be for the banking business and 20 used to be non-banking business. Today, the number is minimum is 2, maximum is 50 number. Still, there are some exceptions. First, HUF, Hindu Underworld family में कितने भी members हो सकते हैं. That will not be treated as illegal association. Even if एक आधे HUF में 50 से ज्यादा members होते हैं, that is a HUF, that is not illegal association. Because HUF is a, you become a member in Hindu Underworld family by birth. आप किसी फैमिली में बर्थ से उसके क्या हो जाते हो? मेंबर हो जाते हो. सो HUF इज एन एक्सेप्शन. दूसरा एक्सेप्शन है, राइट, प्रोफेशनल्स गवर्न बाय स्पेसिफिक एक्ट. क्या बोला मैंने? प्रोफेशनल्स गवर्न बाय स्पेसिफिक स्टैट्यूट और एक्ट. उनके केसेस में यू कैन फॉर्म ए पार्टनरशिप विथ, राइट, राइट. सो मैंने आपको क्या बोला? राइट, professionals governed by specific act can form partnership with unlimited number of partners. Like CS, CS, CWS are 3 professionals governed by specific act. These 3 professionals can form partnership without any limit. 1000 chartered accountants can come together and can form a partnership. It is a legal association. 10,000 chartered accountants can come together and can form partnership. It will be treated as legal association because chartered accountants are governed by specific act. Try to understand. So still हम फिर भी बोलते रहेंगे minimum is 2, maximum is 50. Let me check what is given in your textbook. I need to check because कहाँ पे उन्होंने लिखा है? ओके, यहाँ पे लिखा गया है, राइट, maximum 2. Oh, good. They have changed it. Minimum 2 partners are needed, right, to start the partnership, and maximum number of partners is 50 according to 2013. देखो मैंने बराबर बोला आपको. 2013 में उन्होंने बोला था, सेक्शन यहाँ पे लिखा नहीं है 464, एंड 2014 में रूल्स आ गए. वो रूल्स में 100 को सब्स्टिट्यूट किया गया 50 से. ठीक है. सो दिस इज रिवाइज्ड वन. गुड. आगे नेक्स्ट. So association of 2 or more persons. Second feature. It arises out of agreement. या मैं पहले सिंपल लेता हूं. 2 or more persons, association of 2 or more persons, sharing of the profit. अच्छा, agreement. चलो agreement लिखते हैं.
पार्टनरशिप हैज टू बी आउट ऑफ एग्रीमेंट. यू कैन बिकम ए पार्टनर. देखो, A, B and C comes together and start a partnership. A, B, C individually are called as partners. Individually they are called as partners. Collectively they are called as firm. And the name under which they are doing the partnership, or the name under which they are doing the business, is called as partnership firm. Example, Mr. A is a partner, Mr. B is a partner, Mr. C is a partner. ABC collectively is a firm, and उस firm का नाम है ABC and Brothers. So that ABC and Brothers or ABC and Associates, ABC and Company, that is the name under which they are carrying on a business. That is a partnership name. ध्यान देना, पार्टनरशिप हैज टू बी अराइजिंग आउट ऑफ एग्रीमेंट. मतलब जैसे हम HUF में यू बिकम ए मेंबर नॉट बाय एग्रीमेंट बट बाय बर्थ. उस फैमिली में बर्थ होने से यू बिकम ए मेंबर. I don't remember my brother is in CA final and he was telling me, I think Kalyan Jewelers, I don't exactly remember, Kalyan Jewelers I think is a HUF. I need to confirm, मुझे याद नहीं, 4-5 दिन पहले हमारी बात हो रही थी. Kalyan Jewelers is a HUF. Kalyan Jewelers ही होगा, it is a HUF. So अगर आप उस फैमिली में बर्थ लेते हो, you by default becomes the member of that HUF. However, कोई एग्री पार्टनरशिप है, you become the member or partner of the partnership only by agreement. Example, A and B are the partners. A, B, C are the partners. 3 लेता हूं जानबूझ के. A की डेथ हो गई और A का सन है. Will he become partner by default? No. If son of A has to become partner, he has to enter into agreement between B and C. By birth, he does not become a partner of a partnership. क्या करना होगा? ए को एक एग्रीमेंट करना होगा इन लोगों के साथ, मेरे डेथ होने पे मेरी जगह मेरा बेटा लेगा. अगर ऐसे एग्रीमेंट नहीं है तो सन कैन नॉट बिकम ए पार्टनर. सो यू कैन बिकम ए पार्टनर ओनली थ्रू एग्रीमेंट. इसलिए पार्टनरशिप में एग्रीमेंट इज वेरी इसेंशियल, बिकॉज एग्रीमेंट डिसाइड्स व्हाट द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स. बिकॉज हमने देखा इट इज ए लाइक रिलेशन. सो एग्रीमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, सो लिख लेना, a person becomes partner only by agreement and not birth, and not by birth. जैसे एचओएफ में बर्थ से आप पार्टनर बन मेंबर बन जाते हो, वैसे पार्टनरशिप में नहीं होता है. So agreement is very important. Sir, is it mandatory to have agreement in writing? No, not at all. Agreement can be expressed or implied. Agreement can be expressed or implied. मतलब क्या? Express मतलब क्या? It is in writing. Express मतलब आपने एक दूसरे से डिस्कस किया है, फिर आपने वो राइटिंग में है या ओरल है. एक्सप्रेस कैन बी इन ओरल और इन राइटिंग. आपने एक दूसरे से डिस्कस करके किया. इम्प्लाइड मतलब it is deemed from your actions. Example, what is expressed? Expressed मतलब आपने लिखित रखा है या आपने orally डिस्कस किया है. So it is expressed कि हमारा रिलेशन क्या रहेगा, पार्टनर्स का रिलेशन क्या रहेगा, कौन चेक साइन करेगा, कौन मार्केटिंग देखेगा, राइट, पार्टनर कितने कैपिटल लाएंगे, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, वगैरह वगैरह. कैसे किसी को लेना होगा पार्टनर तो कैसे लिया जाएगा, अगर किसी की डेथ या रिटायरमेंट होती है तो उसका पैसे कैसे सेटल किए जाएंगे, उसका अकाउंट कैसे सेटल किया जाएगा. All these are orally decided or written down somewhere. In that case, we call agreement is express. Implied agreement मतलब क्या? आपने कुछ डिसाइड नहीं किया है, but by your actions, right? It seems everything is decided. Example, implied मतलब क्या? आप देखते हो एक लड़का और एक लड़की हमेशा साथ में रहते हो और आप बोलते हो इनका कुछ चालू है. चालू है मतलब क्या? आप बोलते हो इनके बिहेवियर से लगता है दे आर इन रिलेशनशिप. इट इज इम्प्लाइड. मे बी हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट
थ्रू देयर बिहेवियर आप बोलते हो ये रिलेशनशिप में है। उन्होंने कहाँ पे एक्सप्रेस लिख के रखा है या ओरली बोला है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, आई डोंट नो, बट जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार ये रिलेशनशिप में थ्रू देयर इम्प्लाइड एक्शंस, एक्शंस के थ्रू हमें पता चल रहा है कि दे आर पार्टनर्स। सो एग्रीमेंट नीड नॉट बी इन राइटिंग, एग्रीमेंट कैन बी ओरल, एग्रीमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड, ओरल और implied. Try to understand the agreement which is in writing and if registered, राइटिंग में और आप उसको रजिस्टर करवाते हो तो उसको बोला जाता है डीड। उसको क्या बोला जाता है? डीड। पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। डीड इज अ डॉक्यूमेंट विच गवर्न्स द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स। अगर कोई डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं तो डीड का सहारा लिया जाता है, बिकॉज डीड में आप लोगों ने जो जो डिसाइड किया वो लिखा हुआ होगा एंड आप वो रजिस्टर भी करवा के लेते हो। सो एग्रीमेंट विच इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड is called as partnership deed या just deed. And deed is very important document whenever you if a life, अगर आप कभी पार्टनरशिप में एंटर करते हो, make sure you get everything in writing, because बाद में अगर कोई disputes होते हैं तो deed is very helpful. No one can cheat you or even you cannot cheat others if everything is in writing. Next, आगे, is registration of the partnership is a mandatory in India? No, registration of the partnership is not mandatory. So there are two types of firms, registered firm, unregistered firm. But in a state of Maharashtra, हमारे स्टेट में registration is mandatory. So every partnership has to be registered if it is in Maharashtra. But other than Maharashtra, right, registration of the partnership is not, right, compulsory. इट इज ऑप्शनल। आपको करना है आप करो, आपको नहीं करना है मत करो। इवन महाराष्ट्र में भी पार्टनरशिप डीड जब आप रजिस्टर करते हो हैज टू बी इन मराठी, ये आपको पता होना चाहिए। इट हैज टू बी इन मराठी। देन सो रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी इन इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आगे थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर इज बिजनेस। बिजनेस विथ इंटेंशन टू अर्न द प्रॉफिट। इसका मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, आई एम डिस्कसिंग द फीचर्स। मैं फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से और मैं बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूं। आप बोलोगे सर बहुत लेंदी, अगर मैं लॉ में घुस जाता हूं तो इस एक पॉइंट पे एक एक लेक्चर चलेगा, ठीक है। What if none of the partners knows Marathi and agree to make deed in another language? If you have to register, you have to make the deed in Marathi. Go to your lawyer, he will draft it in Marathi and आपको रजिस्टर करना होगा। आप एक इंग्लिश डीड भी उससे ट्रांसलेट करके ले सकते हो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इंग्लिश डीड हर कोई बनाता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन यू हैव टू डीड इन मराठी। रजिस्ट्रेशन के लिए आप मराठी में रखो, बाकी आपकी कम्युनिकेशन वगैरह आपके पर्पस के लिए इंग्लिश में रखो, ठीक है, ट्रांसलेट करवा के ले लो। देयर आर लॉयर्स ना, प्रोफेशनल्स है, राइट, दे विल हेल्प यू। 1000 रुपीज में मराठी में ट्रांसलेट करके मिलता है, 1000 1500 में मराठी में ट्रांसलेट करके मिलता है। यहाँ पे शिवाजीनगर में कोर्ट है, वहां पे जाके वो नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से रहता है, राइट। वो 100 रुपीज पर पेज जनरली मराठी टाइपिंग का लेते हैं, वो आपको करवा के देंगे। वो लीगल लैंग्वेज होती है, थोड़ा उनका रेट ज्यादा रहता है। नॉर्मल वो अगर टाइपिंग है तो उसके रेट्स कम रहते हैं, बट डीड है ना तो उसके रेट कम रहते हैं। 1000 to 1000 में आपको मराठी में ट्रांसलेट करके मिलेगा, ठीक है। ऑब्वियसली मराठी डीड ओनली महाराष्ट्र मैडम, बाहर कैसे चलेगी? बाहर तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं ना, तो उनको रजिस्टर करना ही नहीं है। करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। लाइक आप गुजरात की फर्म हो, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। महाराष्ट्र में मैंडेटरी है और उसके साथ क्या मैंडेटरी है, जो रजिस्टर, जब महाराष्ट्र में क्या है, ओके, एक और चीज, जिसके लाइक एक ऑफिसर होता है, एक हर जिले में लाइक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिसर रहेगा, उसको बोला जाता है रजिस्टर ऑफ द फर्म, ROF, ROF, रजिस्टर ऑफ द फर्म। वो ऑफिसर वो सब चेक करता है, मतलब उसके पास हमें जाना होगा, सब डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, हमारी डीड वगैरह सब चीजें, पार्टनर जो होते हैं उनके आधार कार्ड वगैरह, बैंक डिटेल्स वगैरह, जो भी चीजें जो लगते हैं वो सब देंगे हम, ठीक है। और हमारी फर्म रजिस्टर करेंगे। उसके पास एक रजिस्टर होता है, उसमें वो फर्म का नाम लिख देता है और
उस हमें एक सर्टिफिकेट इश्यू करता है कि हम रजिस्टर्ड हो गए, ठीक है। सो एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के थ्रू। तो महाराष्ट्र में हमें ये जो बंदा होगा वो मराठी में डीड मांगेगा, बिकॉज वो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, ठीक है। आगे, अरे पार्टनरशिप कहाँ पे रजिस्टर्ड है? इज इट इन महाराष्ट्र? सपोज पुणे में बिजनेस है और पार्टनरशिप इज इन पुणे, तो ये कहाँ पे आ गई? पुणे की आ गई ना। तो ये अगर महाराष्ट्र की पार्टनरशिप फर्म है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में है, तो यू हैव टू रजिस्टर विद द महाराष्ट्र। अगर वही गुजरात में फर्म है तो क्यों उसके लिए महाराष्ट्र, उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं है। प्लेस ऑफ फर्म देखा जाएगा, कहाँ पे फर्म है। सपोज अहमदनगर में फर्म है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेट रहेगा, बिकॉज इट इज विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। राइट, वडोदरा में है तो नहीं रहेगा। नीचे साउथ में बेंगलोर में फर्म है, रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा। आपको देखना होगा कि राइट, इज देयर एनी रिनोड पार्टनरशिप फर्म्स इन इंडिया? अरे सबसे ज्यादा तो पार्टनरशिप फर्म्स है इंडिया में, सबसे ज्यादा। दीज चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स ऑलमोस्ट पार्टनरशिप्स है। आप कोई भी बिग फोर उठाओ, कोई भी बिग फोर उठाओ, एंड आज पार्टनरशिप से भी ज्यादा फेमस है एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स। एकत्वम itself is a partnership firm. एकत्वम itself is a partnership firm. So मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। हाँ, बिजनेस। सो महाराष्ट्र में मराठी में होनी चाहिए। जनरली आप दो टाइप्स की डीडी देखोगे, मराठी में भी मिलेगी, इंग्लिश में भी मिलेगी, बिकॉज मराठी लोगों को समझ में आती है, लेकिन वो लीगल लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट हो जाती है फिर, इसलिए इंग्लिश में डीड रहती है। व्हेन आई वाज डूइंग आर्टिकलशिप, मराठी डीड होती थी, बट आई ऑलवेज यूज्ड टू रेफर इंग्लिश, बिकॉज हमें इंग्लिश के वर्ड्स, वी आर अवेयर अबाउट द इंग्लिश वर्ड्स लाइक गुडविल वगैरह, वो मराठी में बहुत अलग अलग नाम रहते हैं। इफ पॉसिबल आई हैव मराठी डीड, आई विल आल्सो शेयर ऑन द ग्रुप, बट प्रॉब्लम है कि वो एक्चुअल डीड है, वन ऑफ माय क्लाइंट की डीड है, तो उसमें नाम वगैरह है। तो अगर वो पॉसिबल है, अगर एडिट करके शेयर कर सकता हूं तो मैं कर दूंगा आपके साथ। सो आगे देखते हैं क्या बोल रहा हूँ, या हो भी सकता है मेरे साथ, लेट मी चेक, अभी भी हो सकती है। ओके, अभी नहीं है, मैंने फाउंडेशन के लेक्चर में दिखाई थी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ध्यान देना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है, बिजनेस होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस होना चाहिए? पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड ओनली फॉर द बिजनेस। हम चैरिटी के लिए पार्टनरशिप नहीं कर सकते, बिकॉज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टनरशिप? टू शेयर द प्रॉफिट्स। बिजनेस हेल्प्स यू टू अर्न द प्रॉफिट, चैरिटी का पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। सो बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस एग्जिस्टिंग होना चाहिए। लाइक एग्जांपल, आप दो फ्रेंड्स साथ में आके एक एग्रीमेंट करते हो कि जब हम पास आउट होंगे, सीए पास आउट होंगे, तब हम पार्टनरशिप करेंगे। दैट एग्रीमेंट इज नॉट ए पार्टनरशिप, बिकॉज यू आर एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप टू द बिजनेस विच इज नॉट इन एग्जिस्टिंग। बिजनेस एग्जिस्टिंग में होना चाहिए तो ही वो पार्टनरशिप कहलाएगा। फ्यूचर बिजनेस की पार्टनरशिप नहीं हो सकती, एग्जिस्टिंग बिजनेस की पार्टनरशिप हो सकती है। एंड दैट बिजनेस इज विद इंटेंशन टू अर्न द प्रॉफिट, देयरफॉर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस कभी भी पार्टनरशिप नहीं होते। एनजीओज, एनजीओ, समझ में आ रहा है? लाइक एग्जांपल, कोई भी ऐसे चैरिटेबल टेम्पल्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, दे कैन नॉट बी पार्टनरशिप, बिकॉज पार्टनरशिप प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, नॉन प्रॉफिटेबल नहीं। सो बिजनेस आगे, राइट, एग्जिस्टिंग, ऑब्वियसली वो बिजनेस लीगल भी होना चाहिए। बेटिंग बिटिंग इंडिया में इलीगल है, स्मगलिंग, उसके लिए पार्टनरशिप नहीं कर सकते, हम दोनों मिला के स्मगल करेंगे, दैट इज इलीगल। सो एग्जिस्टिंग बिजनेस होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए, राइट। देन फोर्थ, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या समझा रहा हूं आप लोगों को। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स,
This is another important example. Father and daughter, मेरा एक classic example है. Father and daughter enters into an agreement under which father agrees with the daughter that अगर कोई profit होता है सब तेरा, वो बेटी को बोलता है इस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो सब तेरा रहेगा, लॉस होगा तो मेरा रहेगा. 100% प्रॉफिट तेरा, लॉस मेरा. They are not sharing profits. Profit belongs to daughter. Profit does not belong to father. This is not a partnership. भले वो दोनों साथ में आके बिजनेस कर रहे हैं, but they are not sharing profits. What is important is the sharing of the profit. फादर को 1 रुपए भी मिलता है ना तो भी चलेगा, बट शेयरिंग होना चाहिए, तो ही वो पार्टनरशिप है. सो पार्टनरशिप में शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स इज वेरी वेरी इसेंशियल. एग्जाम्पल, ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक एम्प्लॉयर है और उसका मैनेजर है. ये आपने देखा होगा बहुत जगह पे. मैनेजर की सैलरी होती है, तू जितना सेल्स करेगा उसका 10%, तू जितना सेल करेगा उसका 10% तुझे कमीशन मिलेगी. या एजेंट, आपने एजेंट अपॉइंट किया है, भाई तू जितना सेल करेगा ना उसका 10% तेरा. LIC एजेंट्स पता है ना, सिमिलर बेसिस. Are now they are doing business together, employer and manager, right? Manager is sharing the profit. उसको जो प्रॉफिट मिलेगा उसका 10% मिलेगा, सपोज जो भी प्रॉफिट आएगा 10%. But try to understand, sharing of the profit is not only important. Sharing of the profit is essential, but not the ultimate. Reason, ultimate risk belongs to employer and not the manager. अगर वही तो मैं आपको समझा रहा हूं, लॉसेस वगैरह मैनेजर बियर नहीं करेगा. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट इज एसेंशियल. एंड लास्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए. म्यूचुअल एजेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल एजेंसी? आई सिंपली मीन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी. ये वर्ड आपने सुना होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान देना. ABC are the partners. A purchases goods for partnership firm. A ने goods purchase के partnership firm के लिए. In this case, A is called as agent because the person who acts, जो action लेता है उसको agent बोला जाता है of B and C, and B and C together are called as principals. The person who acts on behalf of others is called as agent, and the person on whose behalf the other person has acted, those two persons in this example, my B and C, are called as principal. A has purchased goods for the partnership. A is an agent, B and C are principal. Now, the actions of A bounds B and C as well. ये पेमेंट, सपोज उसने 10 लाख के गुड्स परचेस किए, all A, B and C are liable to pay 10 lakhs. All partners are liable to pay 10 lakhs because A has purchased goods on behalf of B and C in the name of the partnership firm. So action of one partner bounds other partners. The relation is a mutual agency. They are like agent of each other. Principal and agent relationship है, principal and agent. अगर suppose B purchases something for the partnership, B will be called as an agent of A and C. Remaining partners का वो क्या बन जाएगा? Agent. And B's actions will held responsible. Bound मतलब responsible, right? B's actions makes A and C also responsible for this transaction because he has entered in the name of the partnership. Are you getting my point? A purchases flat for his own use. खुद के लिए purchase करता है. This is not in the name of the partnership. So this transaction will not bound B and C. समझ में आ रहा है? वो पार्टनरशिप के लिए होना चाहिए. The relation is a mutual agency. मतलब A acted on behalf of B and C.
B acted on the behalf of A and C. C acted on the behalf of A and B. वही तो ऊपर डेफिनेशन में लिखा है क्या? Carried on by all of them. Everyone can act or any one of them acting for all. But their acts bounce each other. So the last feature is a mutual agency. These are the 5 features of the partnership. कौन-कौन से? There are multiple features, but these are the prominent feature. Association of 2 or more persons. ठीक है? Second is right agreement होना चाहिए. Right? Business होना चाहिए. Sharing of the profits and mutual agency. What is mutual agency? Mutual agency मतलब मैंने अगर कुछ एक्शन ले ली तो वो बाकी लोगों को भी लायबल करे. म्यूचुअल एजेंसी अगर वैसे है तो वो पार्टनरशिप है, अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं है. मैं इतना डिटेल में नहीं जाने वाला हूं. तो दीज आर द फीचर्स. बियॉन्ड दैट देयर आर मल्टीपल फीचर्स विच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक जो मैं डिस्कस करता हूं. एग्रीमेंट तो मैंने बोला आपको, यस. नंबर ऑफ पार्टनर्स बोला, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होने चाहिए, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यस. अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की. व्हाट डू यू मीन बाय अनलिमिटेड लाइबिलिटी? एग्जांपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज योर बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप. Liability of the partnership. There are creditors of rupees 200. There are assets of 300. A, B, C are the partners. इनका capital 40, 40, 20. So balance sheet is tallied at 100, 300. The assets, अब आपको 200 rupees pay करने. You have to pay 200 rupees to your creditors. You sold these assets and you realized only, example, I will take 150 rupees. या 150 थोड़ा मैं नीचे रखता हूं. You received only 100 rupees. आपने असेट सेल किए और आपको 100 rupees मिले. You are right. तो इसके वजह से आपके लॉसेस हो गए. कितने के लॉसेस हो गए? 100 के. 100 के लॉसेस हो गए, बराबर ना? नहीं 200 के लॉसेस हो गए. 300 के असेट्स 200 में सेल हो गए, 200 का लॉस हो गया. नाउ यू हैव ओनली 200 कैश. योर 200 कैश, बट आपको पे करने 200 रुपीज. योर 100 रुपीज कैश, यू हैव 100 रुपीज कैश, यू हैव टू पे 200 रुपीज. कैन यू पे 200 विद द 100? नो. आप 100 पूरा इसको दे दोगे, फिर भी 100 रुपीज बचेंगे. क्रेडिटर्स आपको 100 रुपीज मांग रहे हैं. द फर्म इज इंसॉल्वेंट. फर्म कैन नॉट पे इट्स लाइबिलिटी ऑफ 200 विथ इट्स असेट 100 रुपीज. assets are just 100, भले ही 300 बैलेंस शीट में, but if you sell those assets you can realize only 100. asset खाली inflate करके है, उसका actual value नहीं है. उससे 100 रुपीज मिल रहे हैं. firm has insufficient assets to pay off the liability of 200. हमारे पास 100 रुपीज कम पड़ रहे हैं क्रेडिटर्स को पे करने के लिए. now we will ask ABC to bring 100. तीनों को बोलेंगे तुम लोग 100 लेके आ जाओ. बिकॉज यू आर ए पार्टनर्स, यू हैव टू पे टू द क्रेडिटर्स. आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको क्रेडिटर्स को पे करना है पहले. नाउ द प्रॉब्लम इज सी हाथ ऊपर कर देता है. सी बोलता है देखो यहाँ पे जो 200 का लॉस हुआ है, यहाँ पे जो 200 का लॉस हुआ है, दिस लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स. उनका कैपिटल कम हो जाएगा. एक्चुअली उनका कैपिटल निगेटिव हो जाएगा, बट जाने दो. राइट, क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. Now you have to pay 100 rupees to creditors. Creditors बोल रहे हैं हमें 100 रुपीज दे दो, हमें 100 रुपीज दे दो, हमें 100 रुपीज दे दो. ABC बोल रहे हैं हम तीनों मिला के आपको 100 रुपीज देंगे, और C ने हाथ ऊपर कर दिया. C बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है. Now C will be treated, right? देखो पार्टनरशिप फर्म जब इंसॉल्वेंट हो गई, फर्म के पास पैसे नहीं है क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, तो आप किससे पैसे मांग रहे हो? ओनर से. ओनर को बोल रहे हैं आप प्राइवेट प्रॉपर्टी से पैसे लेके आ जाओ. मैं थोड़ा और अच्छे से एग्जांपल देता हूं, ध्यान देना. दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. These are your assets. Assets are, I will be taking suppose 300
capitals and creditors. A and B are suppose partners. A का कैपिटल 80 रुपीज है, बी का कैपिटल 100 रुपीज है, और क्रेडिटर्स फिर 180 हो गए ना, 120 रुपीज है. क्रेडिटर्स आर 120. ठीक है. या फिर मैं इसको थोड़ा कैसे, मतलब मेरा निगेटिव कैपिटल ना हो, कैसे करूं? अच्छा, वन एट्टी 300. ओके, ठीक है. कितने का लॉस हो जाएगा? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. 300. ठीक है. These assets were sold at 100 rupees. हमें 120 पे करने, फिर भी 20 रुपीज पे करने बाकी है. नाउ फर्म हैज 100 रुपीज विथ देम. फर्म के पास 100 रुपीज कैश है. फर्म को क्रेडिटर्स को पे करना है 120 रुपीज. योर लाइबिलिटीज आर मोर देन योर असेट्स. द फर्म इज इंसॉल्वेंट. फर्म को क्या बोल रहा था? इंसॉल्वेंट. जब फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती तो ये जो 20 रुपीज कम पढ़ कर रहे हैं ना, कैपिटल ए एंड बी को बोला जाएगा ब्रिंग 20 रुपीज. आप दोनों को 20 रुपीज लाने हैं एंड यू हैव टू पे टू द क्रेडिटर्स. नाउ द पर्सनल असेट्स ऑफ ए एंड बी आर यूज्ड टू पे ऑफ टू द क्रेडिटर्स. कब जरूरत पड़ी? जब फर्म के पास खुद के पास पैसे नहीं है टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज. इन दैट केस द पर्सनल असेट्स ऑफ ओनर्स आर अटैच्ड. हम उनके पर्सनल असेट्स अटैच करते हैं और उनके पर्सनल प्रॉपर्टी को लेते हैं. उसको सेल करके जो पैसे मिलेंगे उससे हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे. दिस इज कॉल्ड एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. मतलब आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी का लीला हो जाएगा बिकॉज फर्म राइट इज इंसॉल्वेंट. किसी एक पार्टनर की गलती की वजह से अगर फर्म लॉसेस में जाती है, किसी एक पार्टनर की गलती की वजह से फर्म लॉसेस में जाती है and firm becomes insolvent, in that case personal properties of the partners will be attached. So there is always a risk of unlimited liability. Your liability is not restricted to the capital. आपको कैपिटल तो ही है, beyond that you have to contribute 20 rupees. आपने ए ने 80 रुपीज तो फर्म को दिए हैं, 100 रुपीज भी फर्म को दिए. Try to understand. उसके beyond they have to bring 20 रुपीज as well. उनको 80 रुपीज नहीं मिलेंगे. क्यों नहीं मिलेंगे? देखो ना, यहाँ पे कितने का लॉस हो गया? इस ट्रांजैक्शन में कितने का लॉस हो गया? 200 का लॉस हो गया. ऐसे मानो दे आर इक्वल पार्टनर्स 50-50%. तो इसका लॉस हो गया 100, कैपिटल कम हो जाएगा. इसका लॉस हो गया 100. सो नाउ इस कैपिटल, ए का कैपिटल इज -20, बी का कैपिटल 0 हो गया. बी को 0 रुपीज देना है. बी का कैपिटल खत्म हो गया लॉस की वजह से. ए का कैपिटल निगेटिव हो गया. अब हमारी बैलेंस शीट ऐसे दिख रही है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. राइट, बी का कैपिटल 0, ए का निगेटिव कैपिटल 20 और क्रेडिटर्स दिख रहे 20. ए एंड बी को दोनों को 20 रुपीज लाना पड़ेगा टू पे ऑफ टू द क्रेडिटर्स फ्रॉम देयर पर्सनल एसेट. उनको कैपिटल तो नहीं मिलेगा, कैपिटल भी नहीं मिलेगा. उन्होंने जो फर्म को पैसे दिए कैपिटल वो भी नहीं मिलेगा. उसके बियॉन्ड उनके जेब में से डालना पड़ेगा. सच सिचुएशन इज कॉल्ड एज राइट अनलिमिटेड लायबिलिटी. सपोज बी बोलता है ए का कैपिटल निगेटिव है, ये बोलता है मैं नहीं पे कर सकता, मेरा पहले निगेटिव कैपिटल है, मैं नहीं पे कर सकता. तो बी को 20 रुपीज देने होंगे. तो बी ये नहीं बोल सकता कि ए नहीं दे रहा तो मैं नहीं दूंगा. बी नहीं दे, ए नहीं देता है तो बी को देना पड़ेगा, बी नहीं देता है तो ए को देना पड़ेगा, नहीं तो दोनों को देना पड़ेगा. दोनों ने देना चाहिए, दोनों में से एक नहीं देता तो दूसरे को देना पड़ेगा. सच लाइबिलिटी which extends towards your personal assets are called as unlimited liability.
योर पर्सनल असेट्स आर ऑलवेज एट स्टेक. कोई गलती करता है उसको उसकी भुगतान आपको करनी पड़ती है, लाइक दैट. आगे. So there are some questions. I will take those questions first. There are some questions. Okay, I will take one question. It is out of the box question, okay? But I want to know how does the partners from different countries work? Okay, देखो. You have to be partner. For a partner, partner कौन हो सकता है? Try to understand. Any legal person can be a partner. Any legal person. He can be NRI as well. कोई problem नहीं. It can be your partner. Yes, he can be your partner. कोई problem नहीं. But partnership India में तो he will be governed by Indian Partnership Act. So a person who is a legal person is a partner. So he can be a natural person. It can be a company. Company can be a partner in a partnership firm. Like Reliance and मैंने एक partnership firm start की. It is a possible because Reliance is a person in the eyes of law. Company and मैं एक partnership कर रहा हूँ, possible है. So even NRI can enter into partnership with me. कोई problem नहीं. Like example, a chartered accountant who is abroad और मैंने उसके साथ partnership की है. He has become NRI, non-resident Indian, because उसका stay, like हम बोलते हैं अक्षय कुमार non-NRI, बहुत लोगों ने सुना होगा. अक्षय कुमार is a वो Canadian है, इसे citizenship है उसका, इसे लोग बोलते हैं. Right? He can be a partner, but he will be governed by Indian acts because he has entered into partnership in India. Then, is the remuneration counted as a share of profit? वो अभी डिस्कस करना है. रेम्यूनरेशन शेयर ऑफ द प्रॉफिट में नहीं. रेम्यूनरेशन के बाद जो प्रॉफिट बचता है दैट इज अ प्रॉफिट. आगे. इज इट नेसेसरी फॉर द प्रॉफिट्स टू बी इक्वल प्रोपोर्शन? नो, नॉट एट ऑल. इट्स योर चॉइस. इट्स योर चॉइस. पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैन बी एनीथिंग. आगे. सर इज इट अच्छा पीएसआर कैन बी एनीथिंग. पीएसआर इक्वल ऐसे मैंडेटरी नहीं है. इट्स योर चॉइस. इट इज डिसीजन बिटवीन. लॉ ये नहीं बोलता कि आप पार्टनर कैसे रहोगे. लॉ ये बोलता है आपकी मर्जी है, बिकॉज ये एग्रीमेंट के थ्रू होता है. एग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है. बट लॉ बोलता है अगर आपने डिसाइड नहीं किया है आप कैसे पार्टनर हो तो आप इक्वल पार्टनर हो. लॉ बोलता है ए एंड बी की मर्जी है. उनको 70:30 पार्टनर होना है, 60:40 होना है, 50:50 होना है, 40:60 होना है, 30:70 होना है. उनकी मर्जी है. बट अगर आपने कुछ डिसाइड नहीं किया तो हमारे लिए आप 50-50% पार्टनर हो, ऐसे. देन एक्चुअल में तो मोस्टली कंट्रीज, मुझे नहीं समझा, एक सेकंड, कुछ तो ऊपर रिलेटेड है. किसी ने लिखा है एक्चुअली में तो मोस्टली एसेट्स के रिवैल्यूएशन होते हैं ना. टू बी वेरी फ्रैंक, रिवैल्यूएशन, अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट इज नॉट करेक्ट ट्रीटमेंट. अपवर्ड आप एसेट्स को इंक्रीज करते हो, जो हम 12th में सीखते हैं. वही मैं बोल रहा हूं, देयर आर मेनी थिंग्स जहां पे हम गलत सीख रहे हैं. इट इज इनकरेक्ट. आगे. बट देयर आर ओके, हर कंट्री के अलग अलग होते हैं. देन इफ the profit is shared among the partners, then how they will run the company? How would they run the company? मैडम तू पार्टनर्स बोल रही है, कंपनी बोल रही है, मुझे नहीं समझा क्या है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पार्टनरशिप फर्म, हाउ कैन यू से अबाउट द कंपनी? आई डोंट नो क्या पूछा है यहाँ पे. अरे एग्जांपल, मैं और रिलायंस एक पार्टनरशिप में आते हैं तो हम लोगों का जो प्रॉफिट रहेगा हम सपोज इक्वली शेयर करेंगे. हमारा डिसीजन है. सपोज 10 लाख का प्रॉफिट होता है, मेरे पास 5 लाख रहेगा, उनके पास 5 लाख रहेगा. I will introduce capital, Reliance will introduce capital, ठीक है. So company can be a partner. आगे. Sir, so can up to 50 companies form a partnership or a minimum one individual is necessary? ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है. 2 companies can form a partnership. बहुत बार पार्टनरशिप करते हैं 2 companies. इंडिविजुअल होगा ऐसे नेसेसरी नहीं है. पर्सन होना चाहिए. दैट पर्सन कैन बी इंडिविजुअल. दैट पर्सन नेचुरल पर्सन हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, कोई भी पर्सन होना चाहिए. आगे. अच्छा, when we buy shares from a company, what is the relation? We are a shareholder and it is a company, and उस कंपनी में हम ओनर हो जाते हैं. It is not partners. We are not partners. Try to understand. We are the owner. I am a shareholder and that is the company.
एंड मेरे साथ ऐसे बहुत लोग होते हैं, ठीक है, देन एंड आई गेट डिविडेंड, आई राइट, मुझे डिविडेंड मिलता है उस पे। पार्टनरशिप और मर्जर में क्या फर्क है? मर्जर कैन बी ऑफ एनीथिंग, दो कंपनी मर्ज हो सकते हैं, दो पार्टनरशिप मर्ज हो सकते हैं, दो कंपनीज मर्ज होंगे तो कंपनी रहेगी, दो पार्टनरशिप मर्ज होंगे तो पार्टनरशिप रहेगी। समझ में आ रहा है? सो डिपेंड्स क्या मर्ज हो रहा है उस पे। रजिस्ट्रेशन मैंने पहले ही बोला, रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी इन इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, राइट? रजिस्ट्रेशन इज अ कंपल्सरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005। आगे नेक्स्ट, आगे लिखा है जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। यस, ओन जो पार्टनर्स होते हैं दे आर जॉइंट ओनर्स, दे आर जॉइंट मैनेजर्स, ठीक है, दे हैव कंट्रीब्यूटेड कैपिटल। देन प्रिंसिपल एजेंसी, ये सबसे लास्ट में बोला म्यूचुअल एजेंसी, इट इज अ म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी। Each partner is an agent of other partner. Each partner is an agent of other partners. Their relation is a principal and agent. आगे ठीक है, dissolution. The end of the relation is called as dissolution of the partnership. जब पार्टनरशिप बंद हो जाती है उसको डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप बोला जाता है। सर कैन एनपीओ एज ए वर्क एज ए पार्टनरशिप? मैंने पहले ही बोला मैडम, एनपीओ इज अ फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनका पर्पज चैरिटी होता है एंड पार्टनरशिप चैरिटी के लिए नहीं हो सकती। एनपीओ जनरली ट्रस्ट बोल के रजिस्टर होता है, समझ में आ रहा है? सो पार्टनरशिप, आप पार्टनरशिप ओपन कर सकते हो बट उसमें चैरिटी नहीं कर सकते। अगर आपको चैरिटी करनी है तो उसको पार्टनरशिप मत बनाओ, उसको एनपीओ बनाओ, उसको ट्रस्ट बनाओ। कंपनी भी चल जाएगी, कंपनी भी चल जाएगी एज ए एनपीओ, बट पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर ए चैरिटेबल पर्पज, पार्टनरशिप हैज टू बी फॉर ए प्रॉफिटेबल पर्पज। एंड वो सब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में सीखोगे इन सीए फाउंडेशन। डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। जो एग्रीमेंट होता है, रिलेशन जो डिसाइड करता है, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। यहाँ पे उन्होंने एक एक्सट्रैक्ट दिया है, ठीक है। ये सब चीज है, इंपॉर्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। कई झगड़े वगैरह होते तो पार्टनरशिप डीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आज मैं यहाँ पे रुकता हूँ और फिर मैं कल अकाउंटिंग में एंटर करूंगा, ठीक है। कल हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप एक्ट या पार्टनरशिप समझेंगे। टुडे आई डिड जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्टनरशिप। मैं थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, बिकॉज फिर टाइम लगेगा, बिकॉज मैं अकाउंटिंग में जाऊंगा तो इट विल टेक मिनिमम वन आवर। तो आई विल कंटिन्यू टुमारो नहीं, मतलब डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। सो जो भी अब फिर हम मेथड्स ऑफ कैपिटल वगैरह फिर हम अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव समझेंगे। अभी जो समझा वो लॉ के पर्सपेक्टिव में था। पार्टनरशिप किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में आई विल स्टार्ट विद द लाइक अकाउंटिंग, सेक्शन 13 से स्टार्ट करूंगा विच टॉक्स अबाउट द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। सो आज मैं यहाँ पे रुकता हूँ, पर कल आई विल बी शेयरिंग ए लिंक। मैं इवनिंग तक एक लिंक शेयर कर दूंगा, इवनिंग या मे बी अर्ली मॉर्निंग 25 को। मुझे पता नहीं मेरा सब्सक्रिप्शन कब रिन्यू होने वाला है, कल इवनिंग में होने वाला है, मॉर्निंग में होने वाला है। मैंने उनको अप्लाई करके रखा है, जैसे हो जाएगा राइट। वैसे भी ये लेक्चर आफ्टरनून में रहेगा, सो आई विल बी शेयरिंग द लिंक विद यू। आपको वेबिनार की लिंक आ जाएगी, तो आपको रजिस्टर तब करना होगा। सो ऑन लाइक डे आफ्टर टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग विद द व्हाट, द अकाउंटिंग ऑफ द पार्टनरशिप। अच्छा, आपका क्या करना है, ओके। आप लोगों ने जो मुझे अभी कोई है बच्चा जिसने वो फॉर्म फिल नहीं किया, तो आज इवनिंग तक फॉर्म फिल कर दो वो वाला ऐप का, और आई विल बी अपलोडिंग इट टुनाइट। मैं उसको वो पूरा डेटा ऐप में शिफ्ट करूंगा, तो लेक्चर्स आपको ऐप पे देखने को मिल जाएंगे आगे से, जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो, ठीक है। ऑलमोस्ट मेरा बैकएंड पे सब रेडी है, खाली मुझे अपलोड करना बाकी है, मैं कर दूंगा, ठीक है। और फिर वो अपलोड करने के बाद यू विल गेट ए मैसेज, तो आपको वो ऐप डाउनलोड करके राइट, आई विल ऑल्सो शेयर द बैच कोड, वो बैच कोड इंसर्ट करना होगा। उसके बाद आपकी बैच एक्टिवेट हो जाएगी इन योर ऐप, ठीक है। वो क्लिक हुआ मुझे, अपने आप ऐप की लिंक आ जाएगी, डोंट वरी एट ऑल। अपने आप वो जब मैं ऐड कर दूंगा ना, आपका मोबाइल नंबर आपने मुझे दिया है, उस मोबाइल नंबर पे आपको लिंक आ जाएगी, उस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा, इट विल टेक यू टू प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में जाके
प्ले स्टोर से वो ऐप अपने आप डाउनलोड हो जाएगा एंड फिर यू विल गेट ए ओटीपी, वो ओटीपी आपको इंसर्ट करना होगा। वो ओटीपी डालने के बाद यू हैव टू इंसर्ट ए ऑर्गेनाइजेशन कोड, वो भी उस मैसेज में आ जाएगा क्या ऑर्गेनाइजेशन कोड है। ऐसे एमटी आई डोंट रिमेम्बर, एक कोई तो ऑर्गेनाइजेशन कोड है वो डालना होगा। उसके बाद आपको बैच कोड डालना होगा विच आई विल बी शेयरिंग। मैसेज में बैच कोड नहीं आएगा, ठीक है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन कोड आएगा। सो कुछ नहीं, वो 2 मिनट की प्रोसेस है, अपने आप होता है। आपको पूछेगा ये डाल दो, आपको डालना होगा, ठीक है। आज शाम को मैं कर दूंगा वो, ठीक है। ओके, सो आई कैन एंड टुडेज लेक्चर। आज मैं थोड़ा जल्दी खत्म कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। सो अच्छा, दिस क्वेश्चन ओके, किसी ने पूछा सर ये चैप्टर कितने मार्क्स के लिए रहेगा। यस, मैंने टाइम टेबल दिया है ना आप लोगों को। ओसीएम एंड इको के लेक्चर्स इसी वीक से स्टार्ट हो रहे हैं एंड आई हैव शेयर्ड, ओके आई विल अगेन शेयर दैट पीडीएफ, मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, राइट। मेरा स्टेटस पे वो पीडीएफ था, अगर किसके पास है तो प्लीज शेयर, नहीं तो मैं भी शेयर कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। उसके हिसाब से एवरी वीक, एक्चुअली आई हैव प्लान्ड ओनली 1 डे ए इको, बट अब हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो मैं एवरी वीक में 2 बार इको लूंगा, 2 बार ओसीएम होगा एवरी वीक, ठीक है। सर एनी एड्रेस, नहीं समझा सर, एनी एड्रेस मतलब आई डिडंट गेट यू। अपूर्वा आई डिडंट गेट यू सर, एनी एड्रेस। अच्छा अच्छा, सीए फाउंड, राइट, मुझे चेक करना हो गया, आई हैवंट चेक द मैसेजेस टिल नाउ, मैं बोल देता हूँ बुक्स के लिए, ओके मिल जाएंगे, डोंट वरी, मैंने चेक नहीं किए सुबह से, ठीक है। ओके, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ते रहो, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू।